The point of concentration. बहुत बुरा है. Consideration है. Concentration. What is point under consideration? Wait, wait. Give me 1 minute. Let me think. Think. Um, Here's negative. It either attracts or repels. बेकार. Point under consideration is a point where when another charge is brought, it experiences either a force of attraction or repulsion. Okay. मैंने लिखा नहीं था, मुझे याद नहीं आ रहा कितनी देर से मैं सोच रही थी. ठीक है. अच्छा. What is electric field? The area where a charge is brought to another charge, it either feels attract or repel. Electric field is an area or region in the charge in which when another charge is brought, it experiences a force of either attraction or repulsion. Is this okay? Okay. What is potential difference? पोटेंशियल डिफरेंस शौर्य सुनाओ जिसे याद कर सके. Sir, potential difference is the amount of work done in moving one unit charge from one point to another in an electric field. हो गया. सुनाओ. सुनाओ पोटेंशियल डिफरेंस. It's the work done to move one charge of energy to other. वन चार्ज ऑफ एनर्जी क्यों कह रहे हो? चार्ज चार्ज इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो मैं कहने लगूं शी इज अ गर्ल, तो शी तो गर्ल ही होगी ना. हाँ बोलो. Of charge to other. It is the work done to move one unit of charge to other. 1 unit of charge from one point to another in an electric field. दोबारा सुनाओ. रुक जाए. अभी just it is work done to move one unit of भूल गई मैं. It is the amount of work done. Potential is work, याद रखो. In moving 1 unit of charge from one point to another in an electric field. क्या प्रॉब्लम है? नहीं मुझे याद नहीं आता कि क्या है. चलो ये बताओ व्हाट इज रेजिस्टेंस. हाँ रेजिस्टेंस मुझे पता है. It is the opposite of flow of charge. नहीं भाई गलत था. अच्छा. हाँ भाई आगे बढ़ो. ओम्स लॉ. ओम्स लॉ पढ़ो. क्या नाम है तुम्हारा? गौरव. Is there Ohm's law? Is there a relationship between the potential difference across a conductor and the current through it? Let us explore with an activity. Activity 11.1.
Set up a circuit as shown in figure 11.2, consisting of a nichrome wire XY of length say 0.5 meter, an ammeter, a voltmeter, and 4 cells of 1.5 watt each. Nichrome is an alloy of nickel, chromium, manganese, and iron metals. First use First use only one cell as the source in the circuit. Note, note, Note the reading in the ammeter for the current and reading of the voltmeter. V for the potential difference across the nichrome wire XY in the circuit. Tabulate them in the table given. Next, connect two cells in the circuit and note the uh, respective respective reading of the ammeter and voltmeter for the value of current through the nichrome wire and potential difference across the nichrome wire. Repeat the above steps using 3 cells and then 4 cells in the circuit separately. Calculate the ratio of V to I for each pair of potential difference V and current I. Plot a graph between V and I and observe the nature of the graph. रुक जाओ, देखो भाई ऐसा है, हमने रेजिस्टेंस लगा दिया एक, ये वोल्ट मीटर लगा दिया, ये एमीटर लगा दिया, की लगा दी, राइट। यहाँ पे हमने 4 सेल लगा दिए, ठीक है। लेकिन हमने इस पार्ट को कनेक्ट नहीं करा। अगर हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे तो चारों सेल जो है सर्किट में आ जाएंगे। अगर यहाँ से कनेक्ट करेंगे तो 3 सेल सर्किट में आएंगे। अगर यहाँ से कनेक्ट करेंगे तो 2 सेल सर्किट में आएंगे। यहाँ से कनेक्ट करेंगे तो 1 सेल। जो मैंने आपको सेल दिखाया था, जो पेंसिल सेल देखा है आपने, घड़ी में डाल, उसमें वॉल क्लॉक में डालते हैं, वो होता है Yes, sir. 1.5 वोल्ट का, ठीक है। मान लेते हैं नंबर ऑफ सेल्स यूज, 1 सेल, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 1.5, ठीक है। हम वही वाला सेल मान रहे हैं, गाड़ी में भी बैटरी होती है, वो नहीं मान रहे हैं। यहाँ रीडिंग आएगी आपकी, यहाँ अगर आपने 2 सेल यूज किए तो 1.5 1.5 3 वोल्ट हो जाएगा। 1 सेकेंड, ठीक है। अगर आपने 3 सेल यूज करे तो 4.5 वोल्ट हो जाएगा, 4 सेल यूज करे तो 6.0 हो जाएगा। अब करंट मुझे नहीं पता, डिपेंड करता है रेजिस्टेंस कितना है। मैं ऐसी, मुझे पता है रिजल्ट क्या आएगा, तो मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। मान लेते हैं करंट आया आपका, मान लेते हैं करंट आया यहाँ पे आपका 0.3 एम्पेयर, ये वोल्ट में होता है, पोटेंशियल इज इन वी वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे आया आपका 0.6 एम्पेयर, यहाँ पे आएगा आपका 0.9 एम्पेयर, यहाँ पे आएगा आपका 1.2 एम्पेयर। मुझे पता है इसलिए बता रहा हूँ, अदरवाइज एक्सपेरिमेंटली ही करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपने बी और आई की रेशियो निकाल ली, 1.5 अपॉन 0.3, 5, 5 क्या, 5 ओम ऐसे लिखते हैं। दिस वी अपॉन आई इज कॉल्ड आर, रेजिस्टेंस। यहाँ पे आपने किया 3 अपॉन 0.6, वो भी 5 ओम आएगा, ठीक है। यहाँ किया 4.5 अपॉन 0.9, वो भी 5 ओम आएगा। यहाँ किया आपने 6.0 अपॉन 1.2, वो भी 5 ओम आएगा। मतलब हमें इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चल गया कि रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट, वोल्टेज और पोटेंशियल एक ही बात है, ठीक है। वोल्टेज ऑफ करंट इज कांस्टेंट इन अ सर्किट एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इज दिस क्लियर? अब मैं तुम्हें एक थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में फर्क बताता हूँ। यहाँ तो मैंने ये, मुझे पता है कि ये कांस्टेंट आएगा, इसलिए मैंने डेटा ऐसा लिया, ये डेटा मैंने मर्जी से लिया है, इस डेटा के बारे में मुझे पता है, नॉर्मल पेंसिल सेल की बात कर रहे हैं ठीक है। और इन इस डेटा को मैंने हिसाब से लिया क्योंकि मुझे पता था कि इसको कांस्टेंट आना है, ठीक है। ये तो डेटा मैंने अपनी मर्जी से लिया। जब हम इस एक्सपेरिमेंट को लैब में करेंगे, सपोज सपोज ये डेटा ट्रू हो गया, तो पता है क्या आएगा, ऐसा आएगा कुछ, मैं बताता हूँ, मैं बताने दो, कंट्रोल जेड तो करने दो। जैसे यहाँ आएगा 0.61 एम्पेयर सपोज, यहाँ आ गया 0.89 एम्पेयर सपोज, यहाँ आ गया 1.22 एम्पेयर सपोज। तो ये तो तुम्हारा हो गया 5 ओम। अब मैं कैलकुलेटर से करके लिखूंगा, 3 डिवाइड 0.61, ये आ रहा है 4.92 ओम,
ठीक है, आपने राउंड ऑफ करके लिया था क्या? हाँ 4.5 डिवाइडेड बाय 0.89, ये आ रहा है 5.01 ओम, ये आ रहा है 6 डिवाइड बाय 1.22, 4.92 ये भी, ठीक है ओम। तो ये एग्जैक्टली सेम नहीं आएंगे, एक्चुअली एक्सपेरिमेंट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली सेम आएंगे, लेकिन हमें उससे भी पता चल गया कि द रेशियो ऑफ वोल्ट टू करंट इन अ सर्किट रिमेन्स सेम एंड दिस रेशियो इज व्हाट वी कॉल रेजिस्टेंस। डेफिनेशन ऐसे नहीं है, डेफिनेशन वही है जो मैंने लिखवाई थी, बट प्रैक्टिकली ऐसे है। यहाँ से शुरुआत हुई थी रेजिस्टेंस की, डन बाय साइंटिस्ट ओम, उसका सरनेम ओम था, इसीलिए इसका यूनिट हमने ओम कर दिया है। यहाँ तक कुछ लिखना है तो लिख लीजिए, इससे आगे चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। लिख लिया तो बंद कर दे। लिख लिया? लिख लिया। चले, हम्म। इसी के Yes, साथ sir. आज कुछ आज की कक्षा समाप्त होती है। बढ़िया, ज्वाइन क्यों नहीं किया था ब्रेक ब्रेक होने पे मीटिंग? सर मैं बार बार वेटिंग रूम में गई थी बट फिर वो कनेक्टिंग दिखा रहा था। ठीक है, चलो आज के लिए बाय, याद कर लेना सब कुछ, फिर से सुनूंगा अगली क्लास में। अच्छा, फ्राइडे टेस्ट नहीं होगा तुम्हें, कौन सा है? लाइट जो भी है, नहीं तो मैसेज कर देना सर, डाल दो शेड्यूल, डाल दो शेड्यूल, डालना भूल कर डाल दो। बाय।